Hello students, today we will start the topic algebraic expression and identity. This is your unit 9. Okay, first we will discuss about the algebraic expression. What do you mean by algebraic expression? ये आपने पहले भी पढ़ा है. Algebraic expression में I will write one statement 2x plus 4. Algebraic expression is the combination of variable and constant with operation sign. वेरिएबल और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेशन बनता है. दिस इज़ नोन एज एक्सप्रेशन. इफ वी विल राइट इज इक्वल्स टू 12, दिस बिकम्स एन इक्वेशन. जब हम इज इक्वल्स टू लगाकर कोई भी नंबर लिखते हैं दैन इट बिकम्स एन इक्वेशन. इक्वल्स टू के साइन में के बाद वो इक्वेशन बन जाती है. दिस इज़ नोन एज algebraic expression. Algebraic expression is the combination of different terms. डिफरेंट टर्म से बना है. सबसे पहले हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में देखते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट? कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द अल्फ़ाबेट. लाइक दिस वी हैव यूज हेयर एक्स. अल्फ़ाबेट, कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वेरिएबल. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस बट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट चेंज. दिस इज कांस्टेंट. 4 की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर इसकी टर्म की वैल्यू चेंज हो सकती है. इफ वी विल पुट द वैल्यू 2 देन इट बिकम्स 4. इफ वी विल पुट द वैल्यू 3 इट बिकम्स 6. क्लियर? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस बट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट चेंज. नाउ इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स. हाउ मेनी टर्म्स? देर आर 2 टर्म्स इन दिस 1 2. जब बीच में कोई भी ऑपरेशन आ जाता है प्लस माइनस का तो वो टर्म को अलग कर देता है. देर आर 2 टर्म्स. फर्स्ट इज 2x, सेकेंड इज 4. ओके, हम एक और एग्जांपल लिखते हैं इसमें. 3x प्लस 2xy प्लस 7. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज 3x, second term is 2xy and third term is 7. Clear? Third term is 7. Now it is also made from the factors. These terms is made from the factors. ये terms जो है factors से बने हुए होते हैं. factors of 3x. 3x के factor क्या है? 3 multiplied by x. And what is the factor of 2xy? 2 multiplied by x multiplied by y. What is the factor of 7? 7 multiplied by y. All these are factors. Now next is coefficient. What do you mean by coefficient? We will take the example, same example, 2xy plus 7 plus 7. We will take the same example. First is 3x, then 2xy and then 7. In this term coefficient is 3. We will take the numerical. जो भी नंबर होता है उसको हम coefficient मानते हैं. Mainly the coefficient of x is 3, the coefficient of xy is 2 and here is this is constant. Okay, all these are the algebraic expression. Now we will talk about the terms. There are 2 terms, 3 terms, 4 terms. There are many type of terms. We will read about the terms. Monomial, trinomial and polynomial. We have missed one in between monomial, trinomial, binomial. ये अपने वर्ड से ही हमें पता चल रहा है. फर्स्ट इज मोनोमियल. फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल, मोनो. मोनो मीन्स 1. मोनो मीन्स 1. मोनो एक्टिंग सुना है आप लोगों ने? परफॉर्म बाय 1 स्टूडेंट. ओके, दिस इज मोनोमियल व्हेन देयर इज ओनली 1 टर्म लाइक 3x. दिस इज मोनोमियल. Then is binomial. Binomial. Bi means 2. When there are 2 terms, 3x plus 7xy. Then trinomial.
when there are three terms, 3x plus 7xy plus 7. Okay, there are three terms. This is trinomial. When there is more than three terms, 4 terms, 5 terms, it all come in polynomial. ये सब किस में आते हैं? पॉलिनोमियल. तो सो देयर आर हाउ मेनी टर्म्स? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल. ट्राई मीन्स 3, ट्राई कलर्स. ओके, देन इज पोलोनोमियल. पॉलिनोमियल मीन्स combination of 4 or more terms. Clear all of you? Now we will also read about the like and unlike terms. चलिए हम like और unlike terms के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Like terms and unlike terms. Like terms कौन से होते हैं? For example 3x, 2x, 4x, minus 3x. Okay, all have the same variable. इसमें सभी में वेरिएबल सेम है. हमें इसमें नंबर नहीं देखना होता, हमें इसमें वेरिएबल को देखना होता है. इफ ऑल हैव द सेम वेरिएबल देन दीज आर द लाइक टर्म्स. इफ दे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स लाइक 3xy, 2y, 4y x square minus 3xy square, all have different terms. So these are known as unlike terms. Clear all of you? Now we will read about the coefficient and degree of an algebraic expression. Clear? Now हम coefficient के बारे में पढ़ चुके हैं. We will now read about the degree of an algebraic expression. How what are the degrees? For example, we will take 5/2 x square y square plus 8 x y 4 minus 3/10 x 2 y 3. There are three terms. Now the degree of all the terms. First term में डिग्री क्या है? इन दोनों की पावर्स क्या है? x की 2 and 2 plus 2. The degree of first term is 4. इसकी बन जाएगी 2 plus 2 4. सेकेंड की डिग्री क्या है? जब हमारे पास कोई भी पावर नहीं है तो वी विल टेक 1 होती है वहाँ पे डिग्री. 1 plus 4 5. एंड इन थर्ड द डिग्री इज x की 2 y की 3. सो 2 plus 3 5. These are degrees. Clear all of you? Now we will add the algebraic expression. How we will add the expression? How we will add the expression? We will take minus 10 x square plus 5x plus 3 is equals to, or we will take second term, minus 2x square minus 3x plus 6. Okay, these are two terms of an expression. We will add the expression. See the variables: x square 5x plus 3. We will write it in place of comma. We will put the sign of plus. हमने यहाँ पे ब्रैकेट में क्यों लिखा है इसको? क्योंकि जब भी हमारे पास हमने कॉमा हटाया, कॉमा की जगह हमने प्लस लगाया, कभी भी दो साइन हमारे विदाउट ब्रैकेट नहीं लिखे जाते. प्लस के बाद साइन चेंज नहीं होता, तो इसलिए मैंने सिर्फ इसको ब्रैकेट में लिख दिया, औरों को नहीं लिखा. नाउ प्लस माइनस माइनस, ये रूल हमने कर रखे हैं. प्लस माइनस माइनस, जब दो साइन इकट्ठे होते हैं तो वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं. प्लस माइनस माइनस. अब हमने सेम वेरिएबल्स को उठाना है. माइनस 10x स्क्वेयर एंड 2x स्क्वेयर दोनों सेम है. मैं इस दोनों को इकट्ठे लिख रही हूँ. देन x प्लस 5x माइनस 3x, ये दोनों सेम वेरिएबल्स थे. नाउ प्लस 3 एंड प्लस 6.
क्लियर है? हमने इन सबको इकट्ठे लिख लिया है, वेरिएबल्स को, सेम लाइक वाले वेरिएबल्स को। अब हमने एक एक करके सॉल्व करना है। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल में कोई चेंज नहीं आता। अब मैं एक्स स्क्वेयर वाले वेरिएबल को सॉल्व करी तो एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ लिखा जाएगा, केवल हमने उनके आगे वाले नंबर्स को सॉल्व करना है। इसके आगे नंबर क्या है? -10 एंड -2। ये क्या बन जाएगा हमारा? जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो दोनों नंबर्स प्लस हो जाते हैं और साइन माइनस कराता है। -10 - 2 इज -12। क्लियर? अब x वाले देखिए, +5x - 3x, 5x में से 3x गए, +2x +3 +6 +9। क्लियर? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। कोई भी आपका एडिशन का क्वेश्चन है, आपने सेम वेरिएबल्स वालों को लिखना है। पहले आप सेम वेरिएबल्स वालों को लिखिए। सेम वेरिएबल्स वाले को लिखने के बाद आपने वेरिएबल को सेम रखना है, केवल उनके आगे वाले नंबर्स को सॉल्व करना है। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन -23x + 7y फ्रॉम 20x - 3y। हाँ जी, अब यहाँ पर आ गया फ्रॉम मीन्स आपने पहले ये वाला टर्म लिखनी है, 20x - 3y में से हमने माइनस करना है। तो माइनस का साइन लगाए। माइनस में ये रूल का ध्यान रखिए, जब भी आप सेकंड टर्म लिखेंगे उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। कभी भी आप वोली टर्म ऐसे नहीं लिखेंगे। एक्स प्लस में हमारे कोई साइन की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माइनस में होती है। माइनस में सभी साइंस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि माइनस के साथ जब कोई भी साइन मल्टीप्लाई होता है तो वो चेंज हो जाता है। ओके, 20x एज इट इज़, 3y एज इट इज़। अब यहाँ पर माइनस से बाहर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, ऑल द साइंस विल चेंज, -7y, माइनस प्लस माइनस माइनस। क्लियर ऑल ऑफ यू? अब हमने क्या करना है, वही सेम रूल जो हमने प्लस में यूज़ किया था। सेम वेरिएबल्स वालों को लीजिए, 20x + 23x -3y -7y। मैंने क्या कहा था, वेरिएबल में आपने कोई चेंज नहीं करना। x एज इट इज़, 20 + 23 43x -3y -7y, y एज इट इज़। आपने क्या करना है, -3 और -7, जब दोनों नंबर माइनस के हो तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं, लेकिन साइन माइनस का, -10y। क्लियर ऑल ऑफ यू? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, अभी हम इतना करते हैं, उसके बाद आई विल टेल अबाउट द प्रोडक्ट ऑफ द मोनोमियल बाइनोमियल टर्म्स। ओके।